any experiment or any trial which satisfies these following four conditions are known as Bernoulli's trial. Now, what are these conditions? The first condition, an experiment must have finite number of trials. Like, for example, my experiment is tossing a coin. Then I must have tossing a coin in a finite number of trials. Like, I'm tossing a coin 10 times or 100 times or 50 times, like this. Okay. So the number of trials must be finite, first condition. Second condition, each trial must have two outcomes, success and failure. So if I'm tossing a coin, then my success can be getting head and my failure can be getting tail. And similarly, if my experiment is rolling a dice, then getting an even number might be my success and getting an odd number might be my failure. Or any other success and failure conditions can be defined. It is also possible that getting a number less than or equal to 2 is my success, getting a number greater than 2 is my failure, like that also. Okay, so that success and failure, only two outcomes must be there and it must be mentioned in question properly. Okay, now the third condition is result of each trial must be independent, it must not be dependent. Like, for an example, if I'm tossing a coin, then the probability of getting a head in each toss is independent to the previous one. It does not depend on the previous toss whether I have got head or tail in the previous toss. It does not depend. So these type of trials are independent. But which are the dependent trials? For example, if I have a pack of 52 cards, I'm selecting one card from them. Okay, then I have taken that card and I have not replaced that card again. I'm taking that card out and I'm not again putting that card in the pack. Okay, now I'm selecting the next card. So that next card which is selected is now depends on the what was the previous card we selected first. That type of experiment is called dependent experiment. Is it clear to all of you? Yes, Chevy, Anushri, Naina. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now the fourth condition is probability of success, which is usually denoted by small p, and probability of failure denoted by small q, must not change trial by trial. So the probability of success for each trial must be same, and same for the probability of failure. Okay. One more important note point here is that the probability of success plus probability of failure, that will always be equals to 1. So p plus q is equals to 1. Okay. ये जो जो बन रहा है बनाते जाना, जो डाउट है ना छोड़ देना, मैं देखूंगा फिर, ठीक है. Okay, now the questions for from this topic are all based on this statement. We must the number of trial must be given to us. Maybe we have 10 trials. Okay, and the question will be like, find the probability of getting 6 success in 10 trials, like that. Question will be framed like that. So we will use this formula. NCR, here N is number of trial, R is number of success which we want to calculate. P is probability of success in each trial. Q is probability of failure. So P raised to power N, Q raised to power N minus R. So सबने ये note down कर लिया, ये formula, ये points. Start करें questions. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let's start with exercise 9.3 first. Exercise 9.3 and question number 1. So question number 1 is, a coin is tossed 5 times. So the first statement says that a coin is tossed 5 times. So we can identify the n. N is given to us. N is equal to 5. So 5 travels are there. Find the probability of getting. So the first part is find the probability of getting at least 4 heads, at most 4 head. So first is at least 4 heads. Okay, now what does this at least means? Means we must get at least 4 heads. It means 4 or more than 4 heads must be considered as our success. Okay, so we have to calculate the probability of 4 success, okay, plus probability of 5 success. Okay, because the total number of trial is 5, so we can get up to 5 success at maximum. Okay, so this is what the probability of at least
at least 4 heads. Okay, here getting an head is our success. Okay, so this thing is clear to all of you. Now, uh, probability of 4 success, and success is defined as getting a head. Now we will calculate or we will find the value of p. So p जो है वो क्या होता है, probability of success in each trial. तो एक बार अगर मैं टॉस कर रहा हूं तो सक्सेस से मतलब हेड आना, तो एक बार में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2. क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर वो कैसे निकलता है, 1 - p से, वाली वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1/2. क्लियर ये। अब उसके बाद देखो यहां पर फॉर्मूला लगेगा एनसीआर, जो अभी हमने फॉर्मूला नोट डाउन किया था। तो फॉर्मूले में क्या था, सबसे पहले एनसीआर, तो ये हो जाएगा 5c4। फिर उसके नेक्स्ट चेक करना क्या था, p रेस टू पावर r, q रेस टू पावर n माइनस r। सो p की वैल्यू 1/2 है, 1/2 रेस टू पावर r, q की वैल्यू भी 1/2 है, n माइनस r, सो इट विल बी 5 - 4। क्लियर। प्लस इस केस में क्या हो जाएगा, 5 सक्सेस है, सो 5c5, 1/2 रेस टू पावर 5 इंटू 1/2 रेस टू पावर 5 - 5। एक बार चेक करो और बताओ यहां तक क्लियर है, नैना, शवि, अनुश्री? यस, यस सर। ओके। सर फर्दर हमने ऐड क्यों किया 4 सक्सेस और 5 सक्सेस को? क्या बोल रहे हो, 4 सक्सेस और 5 सक्सेस? ऐड क्यों किए? क्योंकि देखो क्वेश्चन में बोल रहा है एटलीस्ट 4 हेड्स, तो मतलब एटलीस्ट 4 सक्सेस, इसका यही मतलब हुआ। और अगर हम 5 बार टॉस कर रहे हैं तो कम से कम 4 सक्सेस आना, मतलब 4 सक्सेस या 5 सक्सेस, हम दोनों को कंसीडर करेंगे। सो इसलिए हमने दोनों को ऐड किया है। क्लियर है ना। ये क्लियर। अगर एटलीस्ट 3 सक्सेस बोला होता तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस ऐसा लेते। क्लियर। यस सर। ओके, अब 5c4 की वैल्यू क्या होती है बताओ डायरेक्टली। 1 नहीं, 5 5c4 की वैल्यू होती है 5। फिर उसके बाद ये 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 5। ओके, 1/2 की पावर 5 कितना होता है, 1/32, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/32, फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली सेकेंड पार्ट पे आते हैं, 5c5 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1 into 1/2 की पावर 5, 1/2 की पावर 0, so you will get 1/2 whole raised to power 5, which is 1/32. Okay, so the answer will be 6/32. check करो एक बार। yes, 6/32, or we can simplify and write it as 3/16. clear सबको ये? okay, हटा दो मैं ये, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। yes, जल्दी बताओ। Sir, and the other part which says 31/32. Yes, we are starting the second part. Second part, na? You are asking for the second part. That is, I think, at most 4 heads. Okay. So how we can write for at most 4 heads? Just understand the situation. Okay. Now the second part is says that probability of at most 4 heads. Okay, so what does this statement means, at most 4 heads? It means maximum we should get 4 heads. Okay, so we will include the 0 head condition, 1 head condition, 2 head condition, 3 head condition, and 4 head condition. Okay, so it is equals to probability of 0 head plus probability of 1 head plus so on up to probability of 4 head. Is it clear? सबको क्लियर हुआ ये नैना, अनुश्री बताओ जल्दी। यस सर। ओके, Yes, sir. बट ये वाला कैलकुलेशन करने के लिए अगर हम इस अप्रोच को यूज करेंगे ना तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक समझो कैसे करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड एंड सो ऑन अप टू मैक्सिमम हमको कितने हेड्स मिल सकते, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हमारे 5, सो मैक्सिमम वी कैन गेट 5 हेड। ओके, एंड द प्रोबेबिलिटी एंड सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल दीज events will be equals to 1. क्या ये step clear है? Probability of 0 plus probability of 1, that will be equals to 1. Okay, now we have to calculate the probability of 0 head, 1 head, 2 head up to probability of
4 head. So how we can calculate? We can shift this term in the right hand side and we will get 1 minus probability of 5 head, and it will give you the probability of 0 head plus probability of 1 head plus so on up to probability of 4 head. क्या ये स्टेप क्लियर हुआ? एक बार जल्दी बताओ. ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी. सर एक बार वापस से समझा दो ये वाला। देखो अनुश्री, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, ऐसा करते हुए प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 हेड, ये सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा? 1. ये स्टेप क्लियर? पहली लाइन एक्नॉलेज करते जाओ जल्दी, सो दैट मैं आगे मूव करूं. अनुश्री, ओके. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 हेड को मैंने राइट साइड मूव शिफ्ट किया तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 हेड मिलेगा. ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या बचेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हेड. तो ये सारे की प्रोबेबिलिटी जो है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 हेड के इक्वल होगा. एंड sum of all these probability will give you probability of at most 4 head. So this is nothing but probability of at most 4 head, that is equals to 1 minus probability of 5 head. Clear? अब 1 minus probability of 5 head, तो 5 head मतलब 5 सक्सेस, 5 ट्रायल में 5 सक्सेस, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5c5 1 by 2 raised to power 5 into 1 by 2 raised to power 5 minus 5. P और Q की वैल्यू सेम है, कोई चेंजेस नहीं. 1 माइनस 5c5 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/32 into 1 by 2 की पावर 0, it means it is 1. So 1 minus 1 by 32. Further when you solve you will get 31 by 32. ये क्लियर है? एक बार कंफर्म करो. यस सर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें. क्वेश्चन नंबर 2 हटा दो उसको. ओके, सो बट सर हाँ बोलो. हमें पता कैसे चलेगा एग्जाम टाइम में कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से करना है कि बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट से करना है? हाँ, तो इसीलिए मैंने वो स्टार्टिंग में जो 4 स्टेटमेंट्स बताई थी ना, वो 4 स्टेटमेंट्स अगर अप्लाई हो रही है आपके क्वेश्चंस में, तो आपको ये बर्नौलीज ट्रायल से करना है. पहले बट सर आपको ये ये, तो हाँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी एप्लीकेबल है. नहीं, ऐसा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एप्लीकेबल नहीं होता है. और प्लस एक और चीज है, आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में बोला जाएगा, स्टेटमेंट होगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, पहली चीज ये. और दूसरी चीज ये है, उसमें आपको या तो मीन या फिर वेरिएंस निकालने भी बोला जा सकता है. तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है. ओके, यस सर. ओके. Next question, question number 2. A fair coin is tossed 6 times. So here n is equals to 6. Number of trial is equals to 6. What is the probability of getting exactly 4 heads? So exactly 4 heads means R is equal to 4. 4 success. Okay. Here success is defined as getting head. यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं आप, success जो है getting head है हमारा. Okay. नाउ फिर उसके सेकेंड पार्ट में लिखा है एटलीस्ट 4 हेड. सेकेंड पार्ट में है एटलीस्ट 4 हेड, एटलीस्ट 4 हेड. ओके, सो हम सबसे पहले इस पार्ट पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 हेड. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेस इन 6 ट्रायल्स. फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा 6c4 p रेज टू पावर 4 q रेज टू पावर 6 माइनस 4. ओके, अब यहाँ p और q हम कैलकुलेट कर लेते हैं. p जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन 1 ट्रायल, सक्सेस है गेटिंग हेड. तो अगर कॉइन को टॉस करें तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी. यहाँ पर पुट कर देते हैं 6c4 1/2 की पावर 4 और ये हो जाएगा 1/2 की पावर 6 माइनस 4 मतलब 2. फर्दर 6c4 सॉल्व करना. 6c4 क्या होता है? 6 into 5 डिवाइडेड बाय 2 into 1. ओके, फर्दर यू विल गेट 1/2 की पावर 6. अगर इसमें डाउट है ना ये कैसे आया तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा. और अगर कोई डाउट नहीं तो हाँ बोलो. क्यू किस चीज को डिनोट कर रहा है? क्यू जो है वो फेलियर की प्रोबेबिलिटी है.
हाँ वो टेबल पे रख देना ऑफिस में। ओके वो फेलियर की प्रोबेबिलिटी मतलब हमारा सक्सेस क्या, गेटिंग हेड, तो क्यू क्या होगा, गेटिंग टेल। ठीक है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी, क्योंकि सक्सेस और फेलियर दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, 1। तो अगर क्यू की वैल्यू 1, पी की वैल्यू 1/2 है, तो क्यू की वैल्यू भी 1/2 होगी। ठीक है, ओके, ये पार्ट क्लियर। हाँ सर ओके ओके, ऐसे ही रख दे, मैं अरेंज कर लूंगा। 2 1 जा 2 3 जा, ये हो जाएगा 3 5 जा, ये क्या हो जाएगा 15, और 2⁻6 कितना होता है 64, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 15/64। क्लियर ये। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 4 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 4 हेड। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 4 हेड का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 हेड, सारे की प्रोबेबिलिटी निकाल के सम कर लो। क्लियर। इसमें कुछ डाउट तो पूछो, अदरवाइज सॉल्व करके आंसर चेक करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्रायल करना। हाँ बताओ। कौन सा क्वेश्चन है ये? ये गलत है। गलत है, दिखाओ। इसको ना ऐसे लिखो। सर हाँ एक सेकेंड ना अनुश्री, इसको ऐसे लिखोगे 81 टू द पावर 1/4। ठीक है, 81 को क्या लिखोगे, 3 की पावर 4 डिवाइड होल टू द पावर 1/4, ये कटेगा तो क्या बनेगा 3। सेम चीज बाकी में भी अप्लाई करो। हाँ बताओ अनुश्री। ये 6C4 में आपने 6×5/2×1 लिखा, हाँ तो 2 के बदले 4, वो ऐसे होता है ना, 4×3×2। हाँ, एक्चुअली मैं इसको बता दूं एक बार, इसीलिए मैंने हाईलाइट किया था मैंने कि किसी को कुछ डाउट हो तो। देखो जैसे ऐसा हो ना, 6C2 है, तो वो क्या होता है 6×5 डिवाइडेड बाय 2×1 ऐसे होता है। लेकिन अगर मान लो हाँ ये नंबर ऐसा बड़ा है 6C4, जैसे ये आया हमारे पास, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 6C4 को 6C6-4, जो भी नंबर है ऐसा लिख सकते हैं। ये होती प्रॉपर्टी। एनसीआर जो है वो NC(n-r) के बराबर होता है, तो ये जो नंबर है ये किसके बराबर आ जाएगा, 6C2 के बराबर आ जाएगा, इसलिए इसको हम 6×5 डिवाइडेड बाय 2×1 लिख सकते हैं। ओके, क्या, हाँ जैसे अगर 100C 98 निकालना है, तो वो उस तरीके से तो काफी बड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 100C2 लिख सकते हैं। 100C 100 - 98 मतलब 2, जिससे वो इजीली निकल जाता है। क्लियर। हाँ सर Sir got the answer. ओके मी टू। ओके, सो ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इधर आना दो सामने। ये 216 को भी लिखेंगे, इसको फैक्टराइज करो। क्या होता है, 6 की पावर 3 होता है ना शायद। 216 जो है ना, उसको 6 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो 6 की पावर 3 पूरी की पावर 1/3, तो वो कट जाएगा, तो 6 बनेगा। वैसे ये 2 की पावर 5 होता है, उसको वैसे ही करो। ठीक है, और ये 15 × 15, तो ये 15 बाहर निकल जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, सर, तो आगे कैसे सॉल्व होगा? ये वाला, हम्म ये प्रोबेबिलिटी यहां तक समझ में आया क्या अनुश्री? प्रोबेबिलिटी ऑफ हाँ 4 हेड 5 हेड। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हेड, तो वो फॉर्मूला देखो, यही वाला फॉर्मूला लगना है जो अभी मैंने लिखाया था स्टार्टिंग में। क्या था, NCR P⁻R Q⁻n-r, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले को लगाएंगे, तो देखो कैसे लगाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले n की वैल्यू हमारे कितने ट्रायल से 6, तो ये क्या हो जाएगा 6C4। क्लियर। फिर p हम्म रेस टू पावर r, तो p की वैल्यू कितनी, 1/2, तो 1/2 की पावर r की वैल्यू 4 है, इनटू q रेस टू पावर n-r, मतलब 1/2 की पावर n-r, मतलब 6 - 4, जो कि क्या हो जाएगा 2। समझ में आई ये चीज? हाँ ओके, फिर उसके बाद प्लस अगले पार्ट पे जाएंगे,
ये 5 हेड के लिए, तो क्या हो जाएगा 6c5, 1/2 की पावर 5, 1/2 की पावर 5, 6 - 5। क्लियर हुआ ये? फिर उसके बाद आएंगे नेक्स्ट पार्ट पे, 6c6, 1/2 की पावर 6, और ये हो जाएगा 1/2 की पावर 6 - 6। ओके, तो अब इसके बाद अगर ऑब्जर्व करोगे ना, तो ये जो पूरा पार्ट है ये 1/2 की पावर 6 बनेगा, क्योंकि 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 2, तो 1/2 की पावर 6। यहाँ पर भी 1/2 की पावर 6 बन जाएगा, क्योंकि पावर में 5 है, पावर में 1 है। ठीक है, और ये भी 1/2 की पावर 6 बनेगा। क्या ये स्टेप क्लियर, अनुश्री? हाँ, तो यस सर। 1/2 की पावर 6 ये बाहर आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, 6c4 प्लस 6c5 प्लस 6c6 बन गया। ठीक है, अब 1/2 की पावर 6 जो है वो होता है 64। ठीक है, अब 6c4 की वैल्यू निकालना, तो 6c4 अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, वो ये आया था 2 3 3 5 कितना हो जाएगा 15, तो आएगा 15। 6c5 की वैल्यू आएगी 6, 6c1 की वैल्यू आएगी 1, ये कैलकुलेट कर लेना। So further you will get 22 divided by 64, और you can write 11/32। अब बताओ कहीं कोई डाउट तो इसमें? नहीं सर। ओके, सर मेरा आंसर गलत आ रहा है। कौन से वाले का? 4c0 is 1 ना? 6c0 is 1, यस। नैना कौन सा गलत आ रहा है? थर्ड का फर्स्ट। थर्ड का फर्स्ट, चेक करता हूँ एक बार। ये हटा दो अनुश्री। यस सर। ओके, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट क्या है? इफ x डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स इन आ सिंगल, गया, आ गया ना? कैलकुलेशन मिस्टेक थी। ओके, ठीक है। Chevy, you are able to solve these questions, question 3? Yes, sir. Okay. इसमें n को 4 लेंगे ना क्वेश्चन 3 में? If x denotes the number of head in singleton, yes, yes, we will consider n is equal to 4. गलत है ये, यहाँ तक सही है, बाकी फिर गलत है। कैसे किया इसको ऐड? 30 + 15 कितना होता है? 45। 45 + 3 कितना होगा? 48। 48 - 48 क्या होगा? 90। हम्म, कैसे पूरा ऐड किया बताओ? 40 तो 48 तो नेगेटिव है ना? सर हाँ, जो थर्ड का सेकंड है उसमें सिचुएशन ऐसी ना, एटलीस्ट 2 हेड्स। हाँ, तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, ये दोनों को लेके ऐड करेंगे। ओके सर। कौन सा क्वेश्चन है ये वाला? कहाँ सॉल्व किया है? ठीक है, ठीक है। ये 1/3 को 1/2 कैसे लिख दिया अगले बार? हाँ, इसके बाद ये क्या किया? नहीं, गलत है, ऐसा नहीं होता है। उसको उसको रैशनलाइज कर सकते हो, *√3/√3 करके। ओके, वो 3 आ जाएगा अपॉन में, बट ज्यादा कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा वो, यहीं पर छोड़ दो, ये ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा एक्चुअली। हम्म और ये वाला क्वेश्चन कहाँ सॉल्व किया? डिवीजन है ना? इसको देखो, ऐसा करना चाहिए था, 28 की पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 1/3। 28 क्या होता है? 4 × 7 होल रेज टू पावर 1/4
डिवाइडेड बाय 7 की पावर 1/3। फिर उसको क्या लिखोगे, 4 की पावर 1/4, 7 की पावर 1/4 अपॉन 7 की पावर 1/3। फिर ये ऊपर जाएगा या ये नीचे आएगा, जो भी पावर माइनस होगी। ठीक है, सर ये कैसे होगा थर्ड का सेकंड वाला? ओके एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ। थर्ड का सेकेंड, तो सबसे पहले n की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लिया, n इज इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा सक्सेस है गेटिंग हेड, तो सक्सेस हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं गेटिंग हेड। ओके, सो यहाँ पर p की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1/2, q की वैल्यू भी हो जाएगी 1/2। यहाँ तक क्लियर? अब यस सर। सेकेंड पार्ट बोल रहे हो कि कौन सा पार्ट बोल रहे हो? सेकंड। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2, मतलब 2 से कम हेड की प्रोबेबिलिटी। सो इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, 0 सक्सेस या 0 हेड बोलो, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। ओके, सो 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4c0, बिकॉज 4 ट्रायल है, 0 सक्सेस, 4c0 p रेस टू पावर 0। p मतलब हमारा 1/2 की पावर 0, q रेस टू पावर, तो q की वैल्यू भी 1/2 है, तो 4 माइनस 0। क्लियर? प्लस अब 1 सक्सेस पे आते हैं, तो ये हो जाएगा 4c1 1/2 की पावर 1 इंटू 1/2 की पावर 4 माइनस 1। क्या ये समझ में आया पूरा? सर ये इक्वेशन बन गई थी, इसके आगे नहीं हो रहा था। इसके बाद 4c0 की वैल्यू 1 होती है, 1/2 की पावर 4, ये हो जाएगा, समझ में आया? प्लस 4c1 की वैल्यू 4 होती है, यहाँ पर 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 3, मतलब फिर से 1/2 की पावर 4 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 4 कितना होता है, 16, प्लस 4/16, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5/16। ओके, क्लियर है यहां तक? यस सर। ओके, एक सेकंड। हाँ, एलसीएम लो दोनों का, 8 9 जा 72, ठीक तो किया था। फिर 9 8 जा, तो इधर 8 मल्टीप्लाई होगा, 8 9 जा 8 9 जा 18 प्लस 24√6। हाँ, तो ठीक है ना, ऐड करो 18 और 24 को, कितना आएगा, 42, 42√6 अपॉन 72। फिर जो कट रहा है उसको काटो, 42/72 किया। हम्म, कुछ गलत कर रहे हो, 7/12 आना चाहिए, गलत कर रहे हो। इसको प्रॉपरली करो, यहाँ पर आगे सॉल्व करो एक एक स्टेप बाय स्टेप। ओके शेविन, विच क्वेश्चन यू आर सॉल्विंग राइट नाउ? So fourth. फोर्थ। नैना? फोर्थ। ओके, अनुश्री? सर थर्ड पार्ट, थर्ड का। हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम? अनुश्री, उसमें क्या लेना पड़ेगा कंडीशन? उसमें p x इज इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। करेक्ट, और फोर्थ पार्ट में क्या लेंगे बताना? फोर्थ वाले में प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 लेंगे बस। 2 और 3 दोनों लेंगे, हाँ। क्योंकि 2 और 3 इंक्लूडेड है ना, इसलिए। यस सर। हम्म, कितना है, 742, हाँ, 21/36√6। हाँ। हम्म √6 कहाँ गया? ठीक है, तो वही उल्टा लिख रहे थे ना, 12/7। हम्म, Sir, if we have to solve 10C8, then what will be the answer? फॉर विच 10? 10C8. 10c8, we can write 10c8 as 10c2. Okay,
and 10C2 will be 10 into 9 divided by 2 into 1. So it will be 5 into 9, that will be 45. Okay. रैशनलाइज करके सॉल्व करो दोनों को. सर 2 to the power 10 1024 होता है ना? हाँ. पहले इसको ठीक से सॉल्व कर. फोर्थ वाले का गलत आ रहा है मेरा आंसर. किसका? थर्ड का फोर्थ. प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 किया ना. एक बार हाँ. चेक करना. 4C2 इंटू 1/2 की पावर 1/2 की पावर 4 ऐसा लिखा. हाँ. प्लस 4C3 इंटू 1/2 की पावर 4 वो भी वही आएगा. ठीक है. हाँ. हाँ. फिर 4C2 की वैल्यू क्या निकाली? सर वो वहीं पर मिस्टेक हो गई, मिल गया. हाँ ठीक है. दिखाओ पेन. √8 को क्या लिख सकते हैं? ठीक है. एक 2 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2√2. तो √8 को लिखोगे 2√2. समझ में आई ये चीज? प्लस ये हो गया 8√2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 60. सॉल्व करो आगे. सर आंसर नहीं आ रहा है फोर्थ का. ओके. Sir, 1/4. ओके. नैना एक बार चेक करते हैं. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन. अनुश्री फोर्थ सॉल्व करना स्टार्ट किया क्या? यस सर. Okay, so question number 4. 10 coins are tossed. So here n is equal to 10. Okay. What is the probability of getting at least 8 heads? So we have to find probability of at least 8 heads. At least 8 head. So this probability will be probability of 8 head plus probability of 9 head plus probability of 10 head. यहां तक सही किया नैना? यस सर. अब P और Q की वैल्यू तो यहाँ सेम ही रहनी है. हेड है तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2. हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2. सो 8C2 प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 हेड विल बी 10C8 इंटू 1/2 रेस टू पावर 8 इंटू 1/2 रेस टू पावर 10-8. सेकेंड हो जाएगा 10C9 1/2 रेस टू पावर 9 1/2 रेस टू पावर 10-9. नेक्स्ट हो जाएगा 10C10 1/2 रेस टू पावर 10 1/2 रेस टू पावर 10-10. ओके. सो यहाँ पर 10C8 एज इट इज. ये तो 1/2 रेस टू पावर 10 होगा प्लस 10C9 1/2 रेस टू पावर 10 प्लस 10C10 1/2 रेस टू पावर 10. यहां तक क्लियर? अब हम 1/2 रेस टू पावर 10 कॉमन निकाल लेते हैं. 10C8 प्लस 10C9 प्लस 10C10 ऐसा हो जाएगा. अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए ये हो जाएगा 1024. 10C8 को हम 10C2 लिख सकते हैं वो प्रॉपर्टी से. इसको 10C1 लिख सकते हैं. इसको 10C0 लिख सकते हैं. ओके. यहां तक क्लियर है? ओके. अभी हो जाएगा 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस 10C1 की वैल्यू 10 होती है 10C0 की वैल्यू 1 होती है. 2 1 सा 2 5 सा 5 9 सा कितना हो जाएगा 45. ओके. चेक करना नैना कहां पर गलती कर रहे हो. यस सर. 45 plus 10 plus 1. So you will get 56 divided by 1024. Further we can divide it by 2 I think. 2 2s are 4 2 8s are 16. 1024 है ना ये. तो ये आ जाएगा 520 512. Further 2 7s are and it will be 256. So 7/256 will be your answer. Oh sorry, कुछ गलत आया क्या?
14 टाइम्स में जाएगा ना, 14, ये 14 टाइम्स में जाएगा, फिर एक बार और डिवाइड होगा, यहाँ पर ये 14 होगा, 14 फिर डिवाइड होगा, 2 7 सा एंड 2 128 टाइम्स हो जाएगा, 7/128। क्लियर? Yes, sir. Now almost all the questions are of same type, so we Sir, can can you please tell how we have to solve the questions which has with replacement? do we have any such questions in this exercise? Yes, sir. The number next 5. one. Which question number 5? Yes, sir. So with replacement means in each trial we have independent events. Like if with replacement condition is there, then again we have same number of sample space. So we don't need to perform anything extra in that case. Okay. If it will be without replacement condition, then it will not be a binomial trial. Here it will be a binomial trial. So do you want me to explain question number 5, Chevy? Yes, sir. Do you want me to explain this question number 5? Yes, sir. Okay. So question number 5 is, बाकी लोग भी ध्यान देना, अनुश्री नैना. 4 cards are drawn one by one with replacement from a well shuffled deck of playing cards. Find the probability that at least 3 cards are diamond. Okay, so we have a deck of 52 cards. Okay, now out of these 52 cards, we are drawing 4 cards with replacement. What does this means with replacement? We have taken one card. Okay, we check which suit it belongs to, whether it is diamond or non-diamond card, and we have again replaced this card. We have put this card again in that pack. Okay, now we are drawing the next card. Next card is drawn from this pack. Okay, one card. Again we have checked whether it is diamond or non-diamond, and again we have put this card back to the pack. Okay, and so on. So how many times we are doing this trial? 4 times. Okay, so here the value of n or the number of trial will be equals to 4. ये clear है सबको? Okay, नैना, अनुश्री बताओ, acknowledge करो. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now here the success is defined as getting a diamond. Getting diamond is our success. Okay, now what is the probability of success in first trial? So first time when we are selecting one card out of 52, so what is the probability of getting a diamond card? So we have total 13 diamond out of 52. Okay, so the probability 1 of huh? 1 upon 13. 13 upon 52, Nice. 1 upon 4. Correct? Because 13 diamonds are there, na? Anushri, clear na? So here the probability of sir. success P will be 1 upon 4. Now the probability of failure Q will be equals to 3 upon 4. How it is 3 upon 4? 1 minus 1 by 4. Okay. Q is defined as 1 minus P. This is how. Okay. Now P and Q both are defined. Now what the question is asking for? Find the probability of at least 3 cards are of diamond. So probability of at least 3 diamond. Okay, so this probability will be equals to probability of 3 diamond plus probability of 4 diamond. Clear? So we will calculate the probability of 3 success and probability of 4 success. Okay, so out of 4 trials, the probability of 3 success will be 4C3 P raised to power 3. Here P is 1 by 4. So 1 by 4 raised to power 3. And Q, that is 3 by 4 to the power 4 minus 3. Plus next, probability of 4 diamond will be 4C4 1 by 4 raised to power 4 into 3 by 4 raised to power 4 minus 4. Clear?
Now further solve this expression and you will get the answer. But if suppose the question said without replacement, Okay. then what our equation would be here? If the condition will be without replacement, then it will not be a binomial trial, because here the probability of success will be different in the next trial, and according to the condition it should be same in each trial. Okay. So without replacement में like कार्ड की numbers कम हो जाते हैं ना? यस हाँ, वैसा रहता जैसे अभी 52 है, अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट एक कार्ड निकाला तो अगले बार जब हम कार्ड सेलेक्ट करने जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ 51 कार्ड्स होंगे. Yes, sir. ये वाला है. तो ये जो लिखा हुआ है ना 2 रूट. And so here we will have total number of cards again, no, for each, like Yes, each probability that we are finding. 11 घंटे लेट चली. yes. For each case we have same number of cards, that is 52. Okay. इसको ना सिंपली √3 लिख सकते हैं. ठीक है, तो √3/3 माइनस √3/6. एलसीएम ले लो. एलसीएम क्या है? 18. दिखाओ इधर, पेन गलत किया है, यहीं पर बता दो. उसका मतलब सेम होता है, स्क्वायर रूट. एक्चुअली क्या होता है, ये अगर है तो इसका मतलब यही होता है. रूट या स्क्वायर रूट दोनों सेम होता है. ठीक है, क्यूब रूट होता है तो अलग होता है. 3 6 18, सो ये हो जाएगा 6√3. 6 3 18 तो -3√3. क्लियर. 6 - 3 मतलब कितना हो जाएगा? 3√3 डिवाइडेड बाय 18. 3 1 3 6, आंसर आएगा √3/6. समझ में? ये वाला करना है. हाँ, तो ये बन जाएगा ना, ये वाला क्वेश्चन हो गया होगा. अब रैंडमली कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करें. आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन सेम टाइप के, एक बार चेक कर लो कौन सा. Can you please draw the table for cards, like for diamond, spade, and like the division? Okay, so just understand the card structure. So in total we have 52 cards. Okay. सर आंसर गलत आ रहा है. आंसर गलत आ रहा है, चेक कर लो एक बार. 4C3 की वैल्यू आएगी 4. चेक करो ये लिखा क्या, डिवाइडेड बाय, हाँ सर. ये हो जाएगा 1/4 की पावर 3 इंटू 3/4. ठीक है, प्लस 4C4 की वैल्यू 1 आएगी, डिवाइडेड बाय 1/4 की पावर 4. ये तो पावर 0 हो जाएगा तो कट जाएगा. ओके. फर्दर 4 3s are 12. 12/4 raised to power 4 plus 1/4 raised to power 4. So we will get 13/4 raised to power 4. So we can write it as 13/2 square whole raised to power 4. So we can write 13/2 raised to power 8. Now 2 raised to power 8 is equals to, I think it is 256. Yes. So 13/256. यही तो आ रहा है आंसर. अनुश्री क्लियर? एक मिनट. कुछ बोल रहे हो क्या? आवाज नहीं आई एक्चुअली मुझे. सर नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं, मैं एग्जिट हो गई थी. देख हाँ, लो. मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. 4C3 की वैल्यू 4 है, 4C1 की वैल्यू 4C4 की वैल्यू 1 है. ये 1/4 की पावर 3 हो जाएगा, ये 3/4. यहाँ पर 1/4 की पावर 4 और ये तो पावर 0 है तो वो हट गया. फिर उसके बाद फर्दर ये 4 की पावर 4 न्यूमरेटर 12, 4 की पावर 4 न्यूमरेटर 1. So we can write 13/4 raised to power 4. Further, if you can directly calculate 4 raised to power 4 is equal to 256. So you will get this result. Okay. ओके. हाँ. Okay. Chevy, yes. So the card structure you want to understand? Chevy, are you there, Chevy? हाँ, बनाओ उसको आगे. तो 36 को क्या लिख सकते हैं? 6 स्क्वायर. तो 6 स्क्वायर की पावर 1/2. 6 स्क्वायर होल रेज टू पावर 1/2. पावर मल्टीप्लाई होंगी तो आंसर क्या आएगा? 6.
Sir, हाँ बोलो नैना. shall we mark some questions which are important? Important questions. Yes, actually, important questions are. I think you can try the question number 19. You can also try question number 21. ये थोड़े से different है. 19, 21. But otherwise तो लगभग सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है. Sir, in question number 21, already probability has been given. Yes, and we have to find, I think, the number of trials or number of success like that. Probability of his hitting the target at least once. Yes, is 2/3. How many times he fire? Yes, so we have to find total number of trials, n. So question number 21 थोड़ा सा different है, जिसमें n की वैल्यू निकालनी, number of trials निकालना है. Okay. Okay, sir. बाकी तो सारे क्वेश्चन एक बार चेक करना, मेरे ख्याल से सब एक जैसे ही लग रहे हैं. एन दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी आपको निकाल, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 19 में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो एक बार देखना. क्या हुआ, उसको रेसिप्रोकल कर दो ना. -3/1 की पावर +2 आ जाएगा. कौन सा क्वेश्चन है ये? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 रहेगी. सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 19 में. हाँ. देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग ए वॉर 1 in 10 ships was sunk in average in making a certain voyage. What is the probability that at least 3 out of a convoy of 6 ships would arrive safely? Okay, so probability 1 in 10 ships sunk. Okay, so probability that a ship will sunk is 1/10. So if we consider that ship sunks, so its probability is 1/10, and probability that it will not sunk is 9/10. So if we consider that the ship arrives safely is our success, तो इसकी probability 9/10 होगी, 1/2 नहीं होगी. एक्सप्लेन करोगे 19 क्वेश्चन? हाँ सर. ओके, तो 19th क्वेश्चन एक बार चेक करना, थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग ए वार 1 in 10 ships was sunk. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ शिप sunk is 1/10. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ शिप नॉट sunk is 9/10. ये स्टेप क्लियर? अब हम Yes, sir. पी किसको लेंगे, मतलब सक्सेस किसको लेंगे, कि जो शिप है उसका डूब जाना सक्सेस है या उसका नहीं डूबना सक्सेस है? ये दोनों में से नहीं कोई भी. डूबना. हाँ, नहीं डूबना लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के आगे उस तरह का स्टेटमेंट लिखा हुआ है. तो उसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में आगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 3 of 6 would arrive safely? So here n is equals to 6 ships है, जिसमें से कम 3 सेफली अराइव हो जाए. तो एटलीस्ट 3 अराइव सेफली, एटलीस्ट 3 arrive safely. Okay, so we have to find the probability of 3 success plus probability of 4 success plus probability of 5 success plus probability of 6 success. Clear? ये हो गया. Yes, sir. तो यहाँ Yes, sir. यहाँ पर हम सक्सेस इसको लेंगे 9/10 नॉट संक, और फेलियर किसको लेंगे 1/10, मतलब वो संक हो जाना. तो इसका क्या आ जाएगा, 6c3 आ जाएगा. p⁻³ मतलब 9/10 होल रेस टू पावर 3, और 1/10⁻6 - 3. फिर उसके बाद सो ऑन, आगे तो बन जाएगा ना. इसको सॉल्व करो, और डाउट है तो जो पूछो. Yes, sir. ओके, शैवी, क्वेश्चन नंबर 19 मैंने अभी डिस्कस किया है. एक बार उस क्वेश्चन को पढ़ो और उसके बाद फिर समझने की कोशिश करो. Yes, sir.
हाँ सर आप 4:30 वाली टाइमिंग को 5 o'clock कर सकते हो क्या? नहीं, वो एक्चुअली ना उस बैच में बहुत दिक्कत है, वो एकदम फिक्स है। उसमें बाकी अच्छा। सारे बच्चों का दूसरा क्लास बैक टू बैक चलता है ना। इसको क्या लिखा, 5 raised to power, नहीं 625 का है, अच्छा 5 स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। ओके। फिर उसके बाद क्या किया? ओके, तो माइनस माइनस प्लस हुआ ना, गलत किया ना यहाँ पर। हम्म, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो उसको माइनस क्यों लिखा? हम्म, समझ में है कि नहीं? ये 5 का स्क्वायर लिखा, लेकिन ये वाला भी तो माइनस है ना, तो इसलिए वो -2 होगा, और जब वो दोनों कटेगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 5 आएगा आंसर। ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना। ओके, सो ये क्वेश्चन क्लियर है शेवी, क्वेश्चन 19। Yes, sir. हम्म, ठीक है, उसको सॉल्व कर लेना आज कंप्लीट। नंबर सिस्टम आज कंप्लीट करना है, स्पेशली ये 2 टॉपिक। कुछ डाउट होंगे तो मुझे पूछना अगली क्लास में। देखते हैं क्लास में जो बच्चों के स्कूल के टेस्ट होंगे उससे सबसे। सो इसका आंसर है क्या बाकी लोगों का? नैना, अनुश्री? सॉल्विंग। ओके। सॉल्व। ओके, ओके, वेलकम।
सर इसमें जैसे कैलकुलेशन के टाइम 9 to the power 5, 9 to the power 6 आ रहा है, तो इतना कैलकुलेट करना पड़ेगा? एक्चुअली क्या है, ये ना थोड़ा स्मार्टली करना पड़ेगा। ये जीपी वगैरह हम पढ़ते थे ना, एपी जीपी, उस ट्रिक से हो सकता है ये। कैसे? जैसे मैं बता रहा हूँ। अच्छा नहीं, उससे भी नहीं होगा ये। लाइक जैसे लोएस्ट पावर 9 to the power 3 हो रहा है, तो उतना कॉमन ले लिए फिर कुछ। हम्म हम्म हाँ, थोड़ा वैसे ही करना पड़ेगा सिंप्लीफिकेशन। 9 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 6, ये कॉमन निकल जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 6c3। ओके, और कुछ नहीं बचेगा, प्लस 6c4 इंटू 9 प्लस 6c5 इंटू 9 स्क्वायर प्लस 6c6 इंटू 9 क्यूब। ऐसा बच रहा है क्या? हाँ। हम्म इसके बाद कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। 9 क्यूब इज आई थिंक 729 ना। सिक्स सी थ्री की वैल्यू 6 5 30, 5 आएगी। 6c3 हाँ। नहीं 20 आएगी ना। सर आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं क्या? छोड़ तो सकते हो वैसे। अभी हमने 19 किया ना। हाँ, तो यही आ रहा है आंसर। ठीक है। ओके ओके। सर हमारी डेली वाली क्लास तो ट्यूसडे को रहेगी ना, कल नहीं रहेगी? हाँ, कल नहीं रहेगी, वो ट्यूसडे को रहेगी। ठीक है। ठीक है। कल की क्लास वैसे ना, पता है मैं स्टार्टिंग के 10 मिनट ना कुछ लिमिट्स पढ़ाने वाला हूँ, वो तुम लोगों के काम का नहीं है। तो आप 15 मिनट बाद भी ज्वाइन करोगे कल की क्लास तो चलेगा। ओके। ओके ठीक है, एक काम करो, इसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है ना इस एक्सरसाइज के, उसको सॉल्व करो। अगली क्लास में मैं इसके डाउट लूंगा, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। ओके, तो आई थिंक Yes. इस जो कमिंग वीक है इसमें हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा, प्रोबेबिलिटी भी। और उसके बाद फिर जो टॉपिक आप लोग बोलोगे उसका रिवीजन हम स्टार्ट कर देंगे रनिंग बैच में। ओके सर मेरे को तो लग रहा है मैं मैट्राइसिस डिटर्मिनेंट